This is a OSI model, open system interconnection model. ठीक है. So basically what is this OSI model or open system interconnection model? So as we know that whenever we are doing something, there are some standardizations or there are some protocols which we are discussed, which we have already discussed, and there are some organization which decides, just like the meter, length, kilogram, and the weight. Everything is standardized. So same like that, there is a standardization in IoT models, that is a OSI model, which was given by ISO. ISO, maybe you know that International Organization for Standardization, which have proposed this OSI model. But what is the need of the IoT that required this OSI model to TCP/IP मॉडल? सो हम क्या करेंगे कि ये जो OSI मॉडल है, एक और मॉडल होता है, वो है TCP और IP मॉडल. अगर इसको भी देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑन दिस IPS इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल. तो हम जब देखेंगे TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में, तो बेसिक ये था कि जो OSI मॉडल था कि हमें ये रिक्वायर क्यों था और ये लेयर्स क्या हैं, ये या फिर हम इसमें TCP/IP ये वाला जो देखें, ये 4 लेयर्स का है. तो ये एक वर्किंग है IoT डिवाइसेस या IoT एप्लीकेशन या कोई भी नेटवर्क रिलेटेड या कोई भी एप्लीकेशन की, जो एक मॉडल के थ्रू होती है, जो एक चैनल के थ्रू होती है, जो एक प्रोसेस के थ्रू होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच लेयर. So before we begin, we will first start with this physical layer. Okay. So what physical layer do? It gets the raw data. Raw data means whatever data collected by obviously we are having these all things under IoT course, so we will take examples of IoT only. We will not go for that network parts. ठीक है. So एज लाइक दैट व्हाट इज द रॉ डेटा. तो जो भी सेंसर्स होते हैं या फिर हम डिवाइसेस यूज करते हैं, तो उनसे जो डेटा कलेक्ट होता है, ये फिजिकल लेयर में होता है. फिजिकल लेयर एक सिंपल बोले तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का थिंग्स होता है, दैट इज फिजिकल लेयर. ठीक है. So what it will do, so the physical layer receives unstructured raw data between devices and physical transmission media. And what then it will do, then it will transmit the digital information into electrical, radio or optical signals. First it will collect the data, and after that it will transmit the data through the other layers. Okay. So that is a physical layer. Now the data will be given to the data link layer. So data link layer, just we have a link there, that the link layer is combinedly a combination of this physical and data link layer. This model we will use in IoT. And this network layer, directly transport layer, and these three all combination in TCP/IP, they are combined and called a application layer. Okay. So but in OSI model, these all three are different, but in TCP/IP these all three are combined. Okay. So now we will look at this data link layer. So what is data link layer? So basically a data link layer catches the data and detects, corrects any errors. Like if what it will do, physical layer will transfer the data
डेटा लिंक क्या करेगा अब कि ये चेक करेगा जो डेटा इसके पास आया है, उसे डिटेक्ट करेगा और अगर उसमें कोई एरर है, देन इट विल करेक्ट दैट। ओके? और हम हमारे पास होता है लाइक अगर हम कोई एक सेंसर यूज़ कर रहे हैं और जब वो सेंसर फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग अ मोशन डिटेक्शन, ठीक है? तो जो मोशन डिटेक्टर का सेंसर से जो डेटा आया, वो डेटा लिंक के थ्रू लाइक हम उसे किसी एप्लीकेशन से कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो डेटा मोशन सेंसर का आएगा वो उसे चेक करेगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में कौन चेक करेगा, वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम आगे अभी स्लाइड में देखेंगे। तो डेटा लिंक लेयर वो डेटा चेक करेगा, अगर उसमें कोई एरर है तो उसे करेक्ट करेगा। ओके ओके। सो नाउ द नेटवर्क लेयर, we will take this all network transport session layer in a single line. So basically the network transport and session layers, they facilitate data transfer over the connection with a focus on logical addressing, traffic directing, error correction, flow control, congestion avoidance, session management and reliability. तो ये तीनों क्या करेंगे, अगर हम अलग अलग ना लेके इनको एक साथ लें, सो व्हाट दे विल डू, ये इसको चेक करेंगे कि ये ट्रैफिक, जैसे कि हम नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, नेटवर्क लेयर में आते हैं हमारे IPv4 या फिर जो हमने कल देखा था एक प्रोटोकॉल था IPv4 IPv6। तो ये थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल ये डेटा ट्रांसफर होगा IP, ये इसको ट्रांसपोर्ट लेयर TCP नेटवर्क लेयर IP, विच इज दिस TCP एंड IP। तो जो ये मॉडल है वो बेसिकली इन्हीं दोनों के ऊपर बेस है, क्योंकि इनमें मेन वर्किंग यही होती है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर इज नेम्ड एज TCP IP विच प्रोटोकॉल वर्क्स इन नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड IP नेटवर्क लेयर, IP दैट इज TCP। ठीक है? So what they will do, the data coming from the data link layer, ये पहले उसको फंक्शनिंग इनकी TCP IP की क्या होती है कि इसको ब्लॉक्स में जो भी डेटा है उनको ब्लॉक्स में, लाइक अगर उनके पास एक बंच ऑफ डेटा है, ये सारा डेटा एक साथ ना सेंड करके किसको सेंड करेंगे, अपने सोर्स को, एप्लीकेशन लेयर को एक साथ सेंड, डेस्टिनेशन या फिर सोर्स को डेस्टिनेशन। तो जो डेटा यहाँ से आया लिंक लेयर से, वो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर उनको क्या करेंगे कि एक साथ ना भेज के उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। लाइक ये कोई हमारे पास एक पीसी है, यहाँ पे एक TCP IP मॉड्यूल है, ये सेकंड पीसी है, यहाँ से एक डेटा आया 1 2 3 ब्लॉक्स है उसमें, ठीक है? तो जब यहाँ से डेटा सेंड होगा तो अपार्ट फ्रॉम 3 ब्लॉक्स ये इसको डिवाइड करेगा 1 ब्लॉक। तो जो डेटा होगा वो 3 ब्लॉक एक साथ ना जाके अलग-अलग यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से जब निकलेगा TCP IP से अपने डेस्टिनेशन पे आएगा, देन अगेन ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है? रीज़न क्या है कि हम मतलब डायरेक्ट डेटा क्यों नहीं सेंड करते? तो कई बार होता है कि अगर हम नॉर्मली हम बात करेंगे तो IoT में हम ये क्यों यूज़ करते हैं? तो IoT में इसलिए यूज़ करते हैं कि कई बार डेटा एक लिंक से ब्रेक हो जाती है या फिर कोई बार जो एक कनेक्शन होता है वो फंक्शन नहीं कर पाता है। तो अगर हम सारा डेटा एक ही लिंक के थ्रू सेंड करेंगे या एक साथ सेंड करेंगे, तो हो सकता है सारा डेटा लॉस हो जाए और आउटपुट में हमारे पास कोई डेटा ना आए। तो हम क्या करते हैं कि उनको ब्लॉक्स में ब्रेक करके सेंड करते हैं और थ्रू डिफरेंट लिंक शेयर करते हैं। TCP IP क्या करता है, ब्लॉक्स में ब्रेक करेगा और थ्रू डिफरेंट लिंक शेयर करेगा कि इन केस अगर कोई एक लिंक ब्लॉक हुई ड्यू टू एनी रीजन तो दूसरी लिंक वर्क करेगी और डेटा कनेक्शन है, जो हमारा कनेक्शन है 2 पीसीज का, वो लॉस नहीं होगा। ठीक है? सो दैट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ TCP IP लेयर। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो इसका, दैट इज अ, अगर हम इसको ब्रेक करें एप्लीकेशन लेयर को, दैट इज एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। बट IoT में जो हम फोकस करते हैं वो हम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे और प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है? प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, बेसिक इसका जो फंक्शन होता है
So it transforms the data into the form that is accepted by the application. What it means? Transform the data. So what presentation layer will do? It will transform the data जो accept होगा application layer में. अब एप्लीकेशन लेयर में हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं. अगर हमें डेटा चाहिए, हमें ग्राफ्स में डेटा चाहिए, हमें डेटा टेक्स्ट में चाहिए, या फिर हमें डेटा किसी और फॉर्मेट में चाहिए, तो जो प्रेजेंटेशन लेयर होगा वो उस डेटा को, जो यहाँ से इसके पास कंप्लीट आफ्टर दीज 5 लेयर्स इसके पास एक डेटा आया प्रेजेंटेशन लेयर के पास, तो अगर एप्लीकेशन लेयर को ग्राफ में डेटा चाहिए, जो भी यहाँ से सेंसर से रीडिंग आई, मोशन सेंसर की अगर रीडिंग आई, वो कुछ भी लाइक मोशन सेंसर्स की जो रीडिंग फिजिकल लेयर से आई, वो हमें यहाँ ग्राफ में चाहिए, तो प्रेजेंटेशन लेयर एक ग्राफ कन्वर्ट कर देगा डेटा का. ठीक है. सो द डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्राफ. दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन लेयर. ओके, I hope it's clear. So now we will discuss this application layer. The main functioning of the application layer, as that we have, I guess you know that people and process we have discussed. That is the application layer. The main use application of the IoT devices, that all under the application layer. But if we define what is the application layer, so it is the layer closest to the user, the layer which will be uh, in interact with the user, that is the application layer. Typically it identifies communication partners, determines resource availability and synchronizes the communication. जो यूजर होगा और ये फिजिकल लेयर होगा, इन दोनों के बीच में ये सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करता है एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. तो हम ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 इनकी अगर हम आईओटी के हिसाब से अगर अलग अलग डेफिनेशंस देखें या फिर लेवल्स में इनको डिवाइड करें, तो द फर्स्ट लेयर, व्हाट वाज द फर्स्ट लेयर? द फिजिकल लेयर. तो all the sensors, as I mentioned, sensor devices, machines और इंटेलिजेंट नोड्स, जितने भी अगर आपके पास नोड्स होंगे, वो भी नोड्स क्या होते हैं वो हम आगे भी देखेंगे कैसे वर्क करता है. सो ये सारे किस्म होते हैं फिजिकल लेयर में. सेकंड लेयर, द डेटा लिंक लेयर, दैट इज अ कनेक्टिविटी ऑफ अ आईओटी. सो बेसिक द लेवल्स ऑफ IoT according to the model. Connectivity and the data element analysis and transformation, storage, aggregation and access. Last में collaboration and processes, just like the people and processes, involving people and business processes. These are all the breaking of the OSI model as per the IoT requirements. How the OSI model is applied to the IoT model. I hope it is right clear. Anyone having any doubts in this layers, like any functioning और कुछ भी कैसा भी कोई बात नहीं समझ आई हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा नया हो सकता है. those who are having a different background apart from the electronics. Okay, so now network and data protocols. प्रोटोकॉल्स हमने कल देखा था कि व्हाट इज अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी कम्युनिकेशन में अगर हम कम्युनिकेट करना है तो हमें एक रूल्स डिफाइन करने होते हैं. उन सारे रूल्स का जो सेट होता है उसे हम एक वर्डिंग देते हैं प्रोटोकॉल्स. सिंपल. ठीक है. तो लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर. सो how we will differentiate a network protocol, how we will differentiate a data protocol. So first we will look that these all protocols, these are network protocols, these are data protocols. ठीक है.
नेटवर्क प्रोटोकॉल्स अगर हम देखेंगे तो ये कुछ आप देखेंगे, ये लिखा है IEEE 802.11। तो जैसा हमने देखा था कि OSI मॉडल डिफाइन किया गया या फिर TCP IP किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, तो वाईफाई, जिगबी, इथरनेट, इन सबको हम एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू IEEE। IEEE ने बोल दिया। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई अगर इंडिया में कोई काम कर रहा है तो उसने किसी फंक्शनिंग पे काम की, और जर्मनी में काम कर रहा है तो उसने किसी और बेस पे काम किया, तो वो सब ना हो इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन दे देते हैं कि IEEE ने 802.11 इज फिक्स्ड फॉर वाईफाई। बाकी डिटेल इतना नीड नहीं है IoT में कि ये क्यों है, इसको इसको 15.4 ही क्यों है। तो बट इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन फिक्स है कि 802.11 इज फॉर वाईफाई, 802.15.4 इज फॉर जिगबी। ठीक है, so we will discuss it. Okay, so first let's say we take this. I will take a page. Okay, so first inside the IoT network protocols. IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो भी हम फर्स्ट लेयर में डिस्कस करते हैं फिजिकल लेयर में, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स फिजिकल लेयर में जो वर्किंग होती है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है। तो इसमें एक फर्स्ट होता है Wi-Fi. Everyone knows what is Wi-Fi, how it works. But what is Wi-Fi in concept of the protocol? So, in a simple word, it is a ubiquitous protocol. Ubiquitous means like it is present at a time at many position. A term which you use for this is ठीक है. So it is a ubiquitous protocol. But main thing is that in IoT, what is the need of learning these types of protocols or this data protocols और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमें मतलब पढ़ना ही क्यों है? क्यों ही हम इतना दिमाग लगाए? सिंपल से हमने कुछ कनेक्ट किया, हमें आउटपुट आ गया, वो चाहे इससे आए, चाहे इससे आए, चाहे इससे आए या इससे हो। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में भी हमें कहीं HTTP भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हम क्यों ही पढ़ें? ये फिजूल का डेटा क्यों कलेक्ट करें या फिर क्यों पढ़ें? सो देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन बिटवीन ईच ऑफ देम। अगर किसी को नहीं पता कि HTTP और COAP में क्या डिफरेंस है, या फिर वाईफाई, जिगबी, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल हूँ, जिगबी और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ब्लूटूथ। इन आवर कॉलेज हमारे पास है ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है, जिगबी मॉड्यूल भी है, बट आपको शायद ही कोई मानेगा कि जिगबी मॉड्यूल किसी ने देखा तक नहीं। हालांकि फंक्शनिंग सबको शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर जिगबी मॉड्यूल किसी ने यूज ही नहीं किया। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ब्लूटूथ मॉड्यूल इन देयर प्रोजेक्ट। फिर बोलेंगे कि भाई हैंग हो रहा है, या फिर डेटा सही से नहीं आ रहा है, या फिर कुछ हो रहा है कि हमने अभी इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट होने में आधा घंटा ले रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे नो अबाउट द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल ऑफ द नेटवर्क, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज जिगबी, और दे डोंट अवेयर अबाउट द जिगबी फंक्शनिंग। आप अगर सिंपल में एक वर्ड बोलूं तो हम अगर आप आगे देखेंगे रोबोटिक्स में जब देखेंगे नोड्स होते हैं, तो ब्लूटूथ अगर 8 नोड पे वर्क्स करेगा या फिर 6000 नोड्स पे वर्क करेगा, देन इट विल वर्क फॉर द 6400 नोड्स। इस पे आप बहुत सारे नोड्स एक साथ प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर एक हैवी डेटा है तो जिगबी हम प्रेफर करेंगे अपार्ट फ्रॉम द ब्लूटूथ। ठीक है, हालांकि ब्लूटूथ की और भी फंक्शनलिटीज, अगर आप कोई जिसमें बहुत कम नोड्स होते हैं या फिर बहुत कम नोड्स होते हैं जो डेटा
प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब हम ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। रेंज ज़्यादा होती है और क्या इसकी फंक्शनिंग में एक मेन होती है कि बैंडविड्थ इसकी ठीक होती है। बट अगर आप नोट्स ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा बहुत 6400 प्लस नोट सपोर्ट हो जाएंगे, ज़िगबी पे हो जाएंगे, ब्लूटूथ पे वो दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द पार्टिकुलर डिफरेंस। सेम एच, लेट्स कम वन बाय वन। आई वाज डिस्कसिंग वाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई वी नो अबाउट दैट द यूबिक्विटस प्रोटोकॉल कि एक टाइम पे ये बहुत जगह प्रेजेंट हो सकता है और सिंपल इंडस्ट्रियल प्लांट्स, होम्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स या फिर रेस्टोरेंट्स, हर जगह क्या हम यूज करते हैं वाईफाई नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, बट वाई वी डोंट यूज इट और व्हाट आर द disadvantages of using Wi-Fi? That is, first thing is the power usage. ठीक है, तो जो लो पावर और बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस होती हैं, तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि वाईफाई का यूज़ ना करें। हम वहाँ पे वाईफाई यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वाईफाई को चलने के लिए या फिर फंक्शन करने के लिए हाई पावर चाहिए। तो वाईफाई कैसा है? हाई पावर कंजप्शन। ठीक है, तो जो वाईफाई होता है वो पावर के थ्रू में, अगर हम एक कोई IoT डिवाइस है जो सिंपल बैटरी पे फंक्शन कर रहे हैं, देन वी विल नॉट यूज वाईफाई, क्योंकि इसमें फिर पावर जो होगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो अगर हमारी डिवाइस है वो 10-15 मिनट में ही फंक्शन करना बंद कर देगी। दैट्स वाई व्हाट वी यूज इन IoT, इट इज NB-IoT प्रोटोकॉल। ठीक है, सो व्हाट इट इज, नैरो बैंड protocol specifically for the IoT. So this is a narrow band protocol। और हम क्यों इसे यूज करते हैं या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो फर्स्ट थिंग इज इट, मेन थिंग दैट इज लो पावर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वाइड एरिया टेक्नोलॉजी। ओके, सो बेसिकली इसका जो मेन फंक्शनिंग होता है, वो क्यों हमने इसको NB-IoT की टेक्नोलॉजी लाई, वो थी बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस के लिए। बैटरी पावर्ड IoT डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो सेम मैं इसलिए बोल रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई एक बैटरी पावर डिवाइस है तो हमें सिर्फ वाईफाई का पता होता है, तो हम ऐसी डिवाइसेस यूज करते हैं या फिर जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं हम वाईफाई का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी are not aware about that there is something that is NB-IoT. If we are going to use that, then the power consumption will be decreased by more than 2x, 3x. Okay, so that's why we have to be aware about the protocols of each and every data and network layer protocols. ठीक है, so next slide. Okay, so next what we will discuss, I stopped the Bluetooth Zigbee discussion because now we discusses one by one. ठीक है, so Bluetooth, so for what purpose we use it? We use it for the short range communication. एंड अगर हमें शॉर्ट रेंज चाहिए, फिर हम एक और चीज होती है कि इसकी जो पावर कंजप्शन होता है दैट इज लो।
ठीक है। तो अब सेम बात, अगर पावर कंजप्शन इसका लो है तो फिर हम NB IoT को क्यों यूज करें? ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ यूज कर लेंगे, बट द थिंग इज दैट इट इज अ शॉर्ट रेंज। तो जो रेंज है NB IoT की वो ब्लूटूथ के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए पावर कंजप्शन भी उसमें कम है और इसकी रेंज भी ज्यादा है NB IoT की। दैट्स वाई वाईफाई के अगर रिप्लेस करेंगे तो हम NB IoT से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। Similar to Bluetooth, we have something Zigbee। ठीक है। इसका देखेंगे तो हम फर्स्ट थिंग लो कॉस्ट, लो पावर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसे ब्लूटूथ से बहुत ज़्यादा, आई विल से कि हम ब्लूटूथ को अगर स्किप करें, Zigbee को प्रेफर करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। द मेन थिंग इज दैट रिलायबल। Zigbee ब्लूटूथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। इसका सिंपल एक एग्जांपल देखें तो हम जो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, मेडिकल कंपोनेंट्स हैं, और उसमें हम Zigbee यूज करते हैं। पता पड़ रहा है कि ब्लूटूथ हैंग हो गया तो डिवाइसेस काम करना बंद हो गए, तो आपस में कनेक्टिविटी मेडिकल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम रिलायबिलिटी की वजह से ब्लूटूथ डिवाइसेस की बजाय मेडिकल कंपोनेंट्स में Zigbee यूज करते हैं। ठीक है। सो दैट आर द बाकी जो इसके हम रेंज या फिर पावर कंजप्शन या फिर लो कॉस्ट, ये सब सिमिलर होता है Zigbee का, ब्लूटूथ के सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बट मेन थिंग दैट डिफरेंशिएट ब्लूटूथ फ्रॉम Zigbee दैट इज अ रिलायबिलिटी। Zigbee की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, वो किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नोड्स एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। और भी होते हैं, लाइक अगर और हम डिस्कस करें, उतना नीड नहीं होता, LoRa बैन ये भी एक होता है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। अगर दैट LO फॉर लॉन्ग, RA फॉर रेंज, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो इतना हमें इसमें अभी रिक्वायर नहीं है, हम ब्लूटूथ और Zigbee तक ही करेंगे, बाकी वरना फिर बहुत हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब हम आते हैं, so that was our all network protocols. Now we will move forward to I hope जो हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स थे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट है? कोई डाउट आ गया समझ? हाँ, चलो ठीक है। टू द डेटा प्रोटोकॉल्स। ठीक है। सो डेटा प्रोटोकॉल्स में बहुत सारे, आई विल शो यू, ये जो मैंने बोला था ये डेटा प्रोटोकॉल्स होते हैं। वी विल चेक दिस TCP एंड IPv4 फर्स्ट बिफोर कंप्लीटिंग दीज टू। तो जो डेटा प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपने देखा यहाँ पे HTTP भी है, ये CoAP भी है, MQTT भी है, बहुत सारे हैं, बट हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम दो से ही समझेंगे, और CoAP से। ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म या फिर ये वही हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। CoAP की अगर मैं देखूं तो इट इज फॉर द कंस्ट्रेंट प्रोटोकॉल। सिंपल समझेंगे हम एक, ठीक है। तो HTTP और CoAP से हमें एक डिफरेंशिएशन पता पड़ जाएगा, क्यों हम HTTP को प्रेफर करेंगे कि
CoAP को प्रेफर करेंगे इन IoT. Okay, so basically what HTTP do, it is good for the website data transferring. हमें पता भी है कि हम जब वेबसाइट पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है या फिर HTTPS फॉर द सिक्योरिटी. दो होते हैं, एक HTTP और ये सिक्योरिटी. जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो कई बार लिख के आ जाता है नॉट सिक्योर या समथिंग. वो इसीलिए होता है कि जब उन्होंने वेबसाइट होस्ट की होती है या फिर जब होस्टिंग वेबसाइट जहाँ से परचेज करते हैं तब वहाँ से उन्होंने एक SCL होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो ऐड नहीं किया होता है, इसलिए वहाँ पे वो दिखाता है नॉट सिक्योर. सो दैट्स व्हाई देयर आर टू प्रोटोकॉल्स, HTTP एंड HTTPS. फंक्शनिंग दोनों की सेम है, बट एक अनदर थिंग है दैट इज सिक्योरिटी. तो अगर आपको सिक्योर प्रोटोकॉल चाहिए देन हम यूज करेंगे HTTPS. बट अगर हमें नॉर्मल फंक्शन करना है, नॉर्मल डेटा ट्रांसफर करना है थ्रू वेबसाइट, देन वी विल यूज HTTP. ठीक है. सो HTTP is used for the website data transfer. हम इसे जनरली IoT में यूज नहीं करते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके जो मेन रीजन है वो यहाँ से क्लैरिफाई होंगे CoAP से. ठीक है. तो इसका अगर मैं ब्रीफ बोलूँ तो ये क्या करता है, जो नेटवर्क्स होते हैं हमारे थ्रू अदर नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क्स होंगे उनको ये कनेक्ट करता है नोड से. हर एक जितनी भी चीजें होती है, डेटा ट्रांसफर होती है, वो एक नोड से दूसरे नोड में होती हैं. नोड जब हम करेंगे वो हम आपको नोड पब्लिशिंग भी होती है कुछ ऐसा, जहाँ से एक नोड डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है, दूसरा नोड रिसीव कर रहा होता है. वो हम डिटेल में देखेंगे. रोबोटिक्स में हम नोड बनाना भी देखेंगे, नोड्स कैसे बनाते हैं. ठीक है. सो फिलहाल के लिए इतना समझिए कि जब हम IoT में फंक्शन करेंगे, IoT में जब हम यूज करेंगे तब हम HTTP के बजाय CoAP प्रोटोकॉल को प्रेफर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वेट हो रहे हैं, एक हमारे रह गए TCP और IP. थोड़ा हमने लेयर्स में देख सकता कि क्या होता है, फिर भी एक बार अलग से देख लेते हैं. तो TCP इज फॉर ट्रांसफर. अगर हम इसे वर्ड में सीधा बोले तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये इंटरनेट प्रोटोकॉल. अब IP में दो होते हैं, IPv4, IPv6. सेम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. तो इनकी जो फंक्शनिंग होती है TCP और IP की, वो एज डिस्कस्ड कि यही होती है व्हाट दे विल डू to make sure that each messages reach its target location of intent. तो ये जो TCP/IP model है, it breaks down the data into small bundles and afterward resembles the bundles into the original message on the opposite end. ठीक है. कि अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है तो ये इसको बंडल्स में या ब्लॉक्स में ब्रेक करेगा, फिर लास्ट में जाके जहाँ पे ये अपोजिट एंड पे नेक्स्ट साइड पहुंच जाएगा तो ये उनको रिजेंबल करके अगेन द सेम बंडल, कंबाइंड बंडल का बना देता है. Why it is required, as we discussed, sending the information in little bundles of information makes it simpler to maintain efficiency. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग कि इसकी efficiency भी बढ़ जाती है, और सेकंड तो हमने बोला ही ना कि अगर हम एक जगह से वर्क करेंगे, सिंपल efficiency को डिस्क्राइब करें कि अगर एक लिंक ब्रेक हुई थ्रू द एक लिंक अगर कोई फंक्शन करना बंद हुई तो हम इसको एज हमने अलग अलग लिंक थ्रू डेटा को ब्लॉक्स में ब्रेक करके सेंड किया है, तो एक अगर काम करना बंद करेगी तो दूसरी लिंक्स के थ्रू या फिर किसी लिंक के थ्रू नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनी रहेगी.
That's why we use TCP IP module. ठीक है. Next, now we have some network protocols characteristics. हमने अभी देखा था कि RFID, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. So the first thing is that कि रेंज की अगर हम बेस पे अगर इस पे हम कैरेक्टराइज करें तो RFID सबसे पहला आता है जो हम जनरली यूज करते हैं IoT में. तो IoT में जब हम RFID की यूज देखते हैं, देन ये कुछ आप ऐसा मान लीजिए RFID सेंसर भी आता है जिसमें एक कार्ड होता है या फिर एक की चेन टाइप आता है. आई कुड हैव शोन द इमेज बट अवेलेबल नहीं है, तो मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ. तो RFID सेंसर एक ऐसा होता है जिसमें एक सेंसर होता है डिवाइस जो कनेक्ट होगा आर्डिनो से या फिर जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं. तो ये जो इसका कार्ड होगा, जो इसकी की होगी, RFID कार्ड होगा. जस्ट लाइक अ चेन. आपने देखा भी वो कई सारे होटल्स में या फिर मूवीज में आपने देखा होगा कि दे जस्ट टैप द कार्ड एंड दे गेट द एंट्री इन द रूम. हमने एक प्रोजेक्ट भी किए थे इसलिए. तो वो इसी फंक्शनिंग पे होते हैं कि आप उस पर टैप करेंगे तो जो उसमें डेटा सेव होता है, इसमें जो डेटा सेव होगा वो इन एरे सेव होता है. कि आप एक कोड आपने बनाया, ये आपने एक लॉकिंग सिस्टम बनाया, लेट्स से ये लॉक है और ये RFID डिटेक्टर है. RFID डिटेक्टर या फिर मैं बोलूं रीडर. ये जो RFID सेंसर अब जब परचेज करते हैं तो दो चीज आती है. एक रीडर होता है, एक कार्ड होता है जिस पर डेटा हमारे या फिर पासवर्ड जो भी होता है वो सेव होता है. तो ये एक आपने लॉक सिस्टम बनाया थ्रू अ सर्वो मोटर या जो भी यहाँ पे आपने लॉक सिस्टम लगाया, बट मेन था यहाँ पे RFID रीडर और एक RFID कार्ड. तो जब आप इस पे कोड करेंगे तब हम यहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट ही डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप डेटा सेव कर सकते हैं इन एरेज जो डिफाइन कर देगा. इसमें एक चिप होती है RFID कार्ड में, थ्रू कॉइल्स कनेक्ट होते हैं. जब आप इससे कनेक्ट करेंगे या फिर इससे टैप करेंगे या इसके पास लाएंगे इन अ रेंज, कुछ सेंटीमीटर्स में ही होती है इसकी रेंज, तब ये अपने आप ही इसमें सेव कर देगा लाइक 1 1 2 3 4 या फिर जो भी. हमने 1 2 3 4 सेव किया. जब हम इसे टैप करेंगे ये डिटेक्ट करेगा. अगर हमारा पासवर्ड में भी हमने सेम रखा है 1 2 3 4, देन इट मैचेस और ये ऑन हो जाएगा और लॉक ओपन हो जाता है. दैट्स हाउ RFID वर्क्स. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, आई होप आपको RFID क्लियर हुआ होगा कि RFID जो होता है वो फर्स्ट सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट रेंज में आता है वो होता है RFID प्रोटोकॉल. जो नेटवर्क प्रोटोकॉल में होता है वो होता है RFID. NFC NB भी हम यूज करते हैं, बट मोस्टली होता है जो यूज वो है RFID. ये तो हमने अभी देखा ही कि जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ब्लूटूथ, ZigBee, थ्रेड, Z-Wave, वायरलेस बहुत सारे होते हैं. बट स्मॉल लेवल पे या फिर मैं बोलूँ बिगिनर लेवल पे हमारा काम इसी से ही हो जाता है. ये थ्रेड, Z-Wave, कई बार हम इसका यूज करते हैं थ्रेड और Z-Wave का, या फिर थ्रेड का तो करते ही है कि जब हमें ब्लूटूथ ZigBee से ज्यादा रेंज चाहिए होती है पर पावर कंजप्शन भी कम चाहिए होता है, देन थ्रेड यूज करते हैं. बट हमें अभी इसकी नीड नहीं हुई है, हम इन्हीं दो से कंप्लीट करते हैं. ठीक है. तो यही इनकी रेंज होती है, वेरी करती है 10 to 100 मीटर. ब्लूटूथ 10 होता है, फिर ये ऐसे रेंज से बढ़ती चली जाती है. नेक्स्ट हमारे पास ये है वायरलेस लोग. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस एरिया नेटवर्क WLAN. तो इसमें ये वही IEEE स्टैंडर्डाइज्ड है 2.11 या फिर जो भी हम यूज करेंगे वाईफाई में या फिर हमने वेब पढ़ा था उसमें, तो यही है. हमने IEEE स्टैंडर्डाइज्ड करके लिख दिया है. नेक्स्ट हमारी जो रेंज होती है, मीडियम रेंज जो बात होती है वो होती है WNAN की, जिसमें आते हैं ZigBee, NAN, WISN. ये ZigBee का ही आप ये मान लीजिए बड़ा भाई है ZigBee NAN, जिसकी रेंज बढ़ जाती है, पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, बट स्टिल इसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो सेलुलर नेटवर्क यानी कि जो हमारे वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क है, इससे इसकी पावर कंजप्शन बहुत बहुत कम होती है. ऑल्दो इसकी अगर हमें रेंज में वही सेम बात आ गई कि अगर हमें
10 किलोमीटर में फंक्शनिंग करना है और हमारा जो पावर डिवाइस है वो बैटरी पावर्ड है या फिर कोई हम सोर्स यूज कर रहे हैं पावर का, तो हमें पावर कंजप्शन हम क्यों ज़्यादा दें सेलुलर वाली, हमें पता है कि 10 किलोमीटर में ही हमें काम करना है, तो हम 100 किलोमीटर रेंज पर क्यों यूज करें। सो दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, वरना अगर हमें नहीं पता, जनरली लोग क्या करते हैं कि रेंज जैसे ही वाईफाई बाहर जाती है तो सीधा सेलुलर से पकड़ को, कि यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। हम Zigbee नैन को यूज कर सकते हैं। Zigbee नैन सबसे आसान होता है ऐड करने में भी और डेटा रिसीव करने में भी। सो दैट्स हमने देखा कि अगर हम रेंज बढ़ाएंगे अपना 10 मीटर 20 मीटर से, तो वाईफाई के बाद क्या लोग जंप करते हैं सेलुलर पे, जबकि हमारे पास ऑप्शन है ये। क्यों? क्योंकि हमारी कंजप्शन अभी भी यहाँ पे कम होती है। ठीक है, सो सेलुलर में तो है ही हमारे पास। अब जब लॉन्ग रेंज हम बात करेंगे कि 200 किलोमीटर 2G 3G LTE 5G इन द फ्यूचर, ये पुरानी इमेज है, ऑलरेडी है। ठीक है, तो 5G भी है हमारे पास, इवन तो 6G भी है भी। तो उसके बाद ये आते हैं लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो हो गया सेलुलर नेटवर्क जो हम जनरली यूज करते हैं, बट जब हम देखेंगे, ठीक, अगेन अगर हमें चाहिए कि हमारी रेंज ही ज्यादा हो और हमारी पावर कंजप्शन कम हो, देन वी विल यूज LoRa। ये शायद आपने नाम सुना होगा, यस मैंने पीछे भी बताया था, LORA। तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब इनकी एक और डिफरेंशिएशन है, आगे स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। तो हम इनमें क्या करते हैं, हम सेलुलर के बजाय यहाँ पे यूज करते हैं LoRa। तो जनरली जो हम चेक में यूज करते हैं, तो उसका फंक्शन यही होता है, कुछ नहीं, रेंज सेम है, बाकी डेटा ट्रांसफर भी सेम रेट पे ही होता है, ऑलमोस्ट सेम रेट पे ही होता है। बट मेन थिंग इज दैट हमारा, अगर हम पावर पे ध्यान देंगे, पावर कंजप्शन पे, तो हम LoRa यूज करेंगे, इससे हमारी पावर कंजप्शन कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने अब जी टेक्नोलॉजी सॉरी 2G ब्लूटूथ और ये प्रोटोकॉल जब 802.15 देखा, LoRa देखा, LTE देखा, वाईफाई, ये आप गो थ्रू कर लेना कि इनमें क्या क्या डिफरेंट है, डेटा रेट, रेंज में, पावर में, यूजेस में, कॉस्ट में, फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो ये अगर हमें चार्ट में पता होता है या फिर इसके बारे में हमें कुछ पता होता है, हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट नीड्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज यूज करनी है। ठीक है, अगर हमें कम रेंज चाहिए और पावर कंजप्शन भी कम चाहिए, देन वी विल यूज Zigbee। और अगर हमें पावर कंजप्शन से कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी पावर यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ब्लूटूथ, तो ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ऑल दैट्स फीड्स, तो बट ब्लूटूथ हमारा करेगा आराम से, ब्लूटूथ 5.2 है जो वह करेगा, 20 मीटर तक भी करेगा, तो हम ब्लूटूथ यूज करेंगे, अगर में पावर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। सो बेसिकली जब हम देखते हैं नेटवर्क में, तो ISO बोलूं या फिर मैं ISM बोलूं, तो हम डायरेक्ट इनको यूज नहीं कर सकते, जैसे लाइक NFC, RFID लो, और RFID और होते हैं NFC, रेंज लिए ब्लूटूथ, वाईफाई, यहाँ तक आपको यूज करने के लिए कोई भी किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऑलरेडी ये प्री स्टैंडर्डाइज्ड है, बट ये सारे अनलाइसेंस्ड। बट जब आप नैरो बैंड IoT या भी IoT पे जाएंगे, 2G 3G पे जाएंगे, 4G पे जाएंगे, आप लोगों को पता होगा कि हमें ये परचेज करने के लिए IDs या फिर कुछ आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि हमारे लिए इसको यूज करने के लिए, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज करने के लिए एक लाइसेंस की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज होता है, यहाँ से रेंज की इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमें एक लाइसेंस होना नेसेसरी है। ठीक है, ठीक, दैट्स व्हाई वी यूज दिस लाइसेंस सेलर समवेयर, जहाँ पे हमें रेंज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम इनको यूज करेंगे। इसलिए NB-IoT लोग नहीं प्रेफर करते थे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भी 2G 3G 4G 5G की तरह लाइसेंस की नीड पड़ेगी। बट LoRaWAN तक ये सारे अनलाइसेंस्ड होते हैं, लो रेंज पर यहाँ तक ये सारे
अनलाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट थिंग, एम आई ऑडिबल? पता नहीं होता, Yes, sir. Yes, sir. बोर तो नहीं हुए? सो ओके, you for joining, see you tomorrow.